maybe I hope that everyone mostly they knows about our speaker today. Okay, her name is Clear. I'll not tell full name now. Her name is Clear. She is my classmate. उसके जो नाम है वो क्लियर है और वो मेरा क्लासमेट है. So when she came first time, I helped her to join in Spicer for register in Spicer. So I asked, "What is your name?" She said, "First Clear." Then I asked, "What is your last name?" She said, "Nepali." I just look at her. What? Yeah, I know you are from Nepal. It's understand. That does not mean that you will use your Nepali and with your surname. Then she shows, see my documents. It's Nepali only my surname. जब मैं उसको पहले मिला, जब उसका नाम पूछा तो नाम के बाद वो क्लियर नेपाली बताया, तो मैं भी थोड़ा घबरा गया कि क्या है, वो नेपाल से आया है इसलिए नेपाली बता रहे क्या. So it was like I did not find anyone Indian maybe that whose surname is Indian or Bharati, but maybe she is the pure Nepali. That's why her surname also Nepali. So we study same class and same subject. So we spend so much time. And she's from Nepal. She has three sisters, one brother, and we can see that one bhabhi also here. Uh, her sister, then bhabhi, then bhabhi's sons, and she. And really, she's like spending life with family so nicely that we can see always happy, and she always teaches us how to be happy. And this is her brother-in-law and parents too. So this is a wonderful time with us to get her with us as a classmate. She always inspire us how to be smile always all the time. तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उसको पाने के बाद जैसे कि एक दोस्त के हिसाब से हर टीम में सिखाती रहती है कि कैसे खुशी में रहना है, चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम आए. ये बहुत खुशी की बात है. सो नाउ वी आर गोइंग टू गिव टाइम टू हर टू स्टार्ट द मैसेज. You can hear me? Yes. It's good evening and Namaste to all. And then I like to thank God for giving this opportunity. You can translate. और सबको जय मसीह की. और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब यहाँ पर आने के बाद कि सबसे मिलके. And then like when like brother preaches and like Sumitra was doing, I heard that they are doing this ministry. I feel so excitement, and then I feel like I want to do, and then I want to do like ministry for God, and then I feel so excited. I mean, when I hear about this ministry. जैसे कि वो जो पहले बार सुनी है कि मैं और जो ब्रिजेस हम लोग एक मिनिस्ट्री बना है, जिसलिए जैसे कि सारे जितने सारे डिनोमिनेशन है एक साथ हम लोग वर्शिप कर सकते हैं. तो इसलिए वो बहुत खुश हुई और वो चाहती है कि एक साथ जुड़ने के लिए कि और भी कुछ कर पाए एक साथ मिलकर. And then most important thing, I feel so happy. Like in Christ, in Christ we are one, and then we are from different country, place, and but we are here to worship God. मैं और भी बहुत खुश हूँ इसलिए ताकि हम लोग जो है कि परमेश्वर के सारे फैमिली है पर अलग अलग जगह से है पर एक जगह में एक साथ हो पाए. So like today, I'm going to talk about kindness. Before starting about kindness, I want to share one story. I think everyone knows in Luke 15 verse 11 to 32, we can get that story. और जैसे कि मैं जब आपको जैसे पता है कि आज जो मैं जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ वो है कि नम्रता. और उस बातें में आने के पहले मैं एक जो कहानी बताना चाहता हूँ जो बाइबल में लिखा है, जो दृष्टांत. I think mostly this story everyone knows like about lost son. ये जो कहानी है मुझे लगता है कि सबको पता है कि जो खोए हुए जो बेटा है. Like in this story is like in shortcut I will tell you can go and like story like it's about like there will be father and two son.
जैसे कि आप लोग भी बाइबल में पढ़ सकते हैं और आप लोग पहले से ही पढ़े हैं कि एक वहां पर एक पिता थे और उसका दो बेटा थे। And then youngest one, he thought like he wants property, and he'll go and ask his father. जैसे कि वहां पर देखते हैं जो सबसे छोटे थे वो उसको लगा कि वो अपने पिता के पास गया और बताया कि मेरा जो है हिस्सा वो मुझे दे दीजिए। And then after taking that property, like he will go to different countries so that he can enjoy with that money, whatever his father gave. तो उसके बाद वो जो सब कुछ मिला है उसको पैसा और सब कुछ मिल करके वो दूसरे जगह में गया, वहां पर वो बहुत मजा कर रहे थे, वहां पर मतलब कि बहुत कुछ चीज कर रहे थे जो करना नहीं है, पर वो उसमें बहुत After मजे खुशी he में थे। enjoy a lot, after that, you will not have anything like money, friends, everything he lost. He will lost. तो उसके बाद एक समय आते हैं जब वो सब कुछ खो देती है, जितना सारे चीज थे सब कुछ खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद वो उसके दोस्त जो थे वो भी वो खो डालते हैं। And after he start to work for pig, like pigs. तो वहां पर देखते हैं कि वो सुअर के लिए काम करते थे, वहां पर उसको खाना खिलाते थे। And that time he'll remember like how he used to be in home, like his father, like how they used to eat food. He will remember, and then after हाँ। remembering that, he will think about his father. तो वहां पर देखते हैं कि जब वो इस परिस्थिति में आते हैं तो अपने जो परिवार है अपने पिता के बारे में सोचते थे कि उन लोग कैसे एक साथ मिल करके रहते थे, कैसे खाना खाते थे, मतलब कि वो कितने बड़े इंसान थे, पर वो अभी भी कैसे हालत में है। And then after he will return to his father, and then like his father will know that he's coming, and then he will be so happy, and then he will be so excitement to like get back his son, and then he will hug him. He will like, even he will be in dirty dress, anything, he will just go and hug and do party for his son to welcome him. तो उसके बाद देखते हैं कि वो बहुत खुश थे, और कि मतलब खुश नहीं सोच रहे थे कि मतलब मैं वहां पर जाऊंगा वापस जाऊंगा उसके बाद तो मैं उसको हाँ करूंगा तो वो मैं कितना खुश ना हो सकता हूँ, फिर से सारे सब सब कुछ अब वापस आ सकते हैं। In this story, what we can see, we may think this is father and son love. That's why, like, he forgive his son. But mostly, what I'm trying to say is there we can see his father kindness towards his son. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाँ वो उसके पिता थे इसलिए उसका जो है कि पाप क्षमा कर दिए और उसको आगे गले में हाथ किए, पर यहाँ पर देखते हैं कि वो पिता कितना नम्र थे अपने बेटे के बारे में, इसलिए ऐसा कार्य वो कर पाया। Before I start my sermon, I want to pray. I'll pray in Our merciful Heavenly Father, thank you, Lord, for giving this opportunity. Lord, help me and guide me so that your word, your merciful can guide in my every word, that your blessing will be in. In Jesus' name, I want to pray. Amen. Amen. Okay, today my topic is about kindness. So before we start, what is kindness? I want to talk because this is the characteristic of God, like when we think about it. And then like I want to open Galati 5 verse 22. तो मैं यहाँ पर जो जानते हैं कि आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि नम्रता के बारे में कहते हैं, और इस जो नम्रता क्या है और ये कहाँ से आए हैं और ये चीज कौन बनाया, और मतलब कि कैसे परमेश्वर ने कैसे हम लोग को इस चीज के लिए बारे में कहते हैं, तो ये चीज हम लोग जानने के लिए हम लोग जो गलतियां हैं 5 का 2 से 23 तक हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर कहते हैं ऐसे। Galati 1 मिनट। 5:22. कोई पढ़ सकते हैं, हिंदी में यहाँ पर लिखा है, स्क्रीन में आया होगा। I think in screen everyone can see because it will take a lot of time. पर आत्मा का तो फल यहाँ पर प्रेम पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। When we talk about kindness, for me, like kindness, it will come from gentleness, goodness, mercy. These three words I want to include in one word, that is kindness.
तो जब हम लोग इस जो नम्रता के बारे में आते हैं तो उसके साथ और भी चीज है जो मैं उसके साथ जो ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि भलाई के बारे में, और उसके बाद और जो और संयम में है, ऐसे ऐसे जो सारे चीज है उसको मैं इसके साथ भी जोड़ना चाहता हूँ। When we think about kindness, what come in our mind? Whenever, like, when we think, like, what is kindness? Whenever it, everyone may think, no, what is kindness? Because we are human being, of course, we'll think about what is kindness, even how much we will be rude or like angry person. तो ऐसे है कि जैसे कि हम लोग जब सुनते हैं कि नम्रता, ये नम्रता है क्या चीज, जैसे कि कोई बताते हैं कि नम्रता करना है, तो हम लोग सोचते हैं, अगर हम लोग गुस्सा में भी है तो हम लोग सोचते हैं कि है क्या नम्रता, जैसे कि क्या कहना चाहते हैं नम्रता के बारे में, नम्रता है क्या। I want to read some like one paragraph, like what Paul tells about kindness. तो मैं ये भी एक चीज पढ़नी चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो पौलुस है वो क्या कहते हैं यहाँ पर, जैसे कि नम्रता के बारे में। Let's talk about our responsibility of God is to be kind, which is source of Holy Spirit. जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जो हम लोग का जो है, जैसे कि जितना सारे चीज है जो जो पवित्र आत्मा से आए हैं, ये सारे चीज जो है कि परमेश्वर हम लोग को दिए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ये सोर्स जो है उसका उत्पत्ति पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ है। In our life, like natural flow, like natural behavior out point which are going, that should be shown in our character. That is like our kindness. तो यही है कि काइंडनेस, जो नम्रता क्या है, जैसे कि हम लोग का जो अंदर में जो मन है वो बाहर में आना चाहिए। जैसे कि एक परमेश्वर का जो मन है वो भी, जैसे कि उसका चरित्र है, जैसे कार्य करते हैं ऐसे ही होना चाहिए, वही होता है कि नम्रता। Kindness is like, it's when we talk about kindness, we need to think about Jesus, like it's character of Jesus. When like as we are here Christian, or did you ever think about like kindness and then God? जैसे कि हम लोग जब सोचते हैं इस नम्रता के बारे में तो यीशु मसीह के बारे में भी याद आते हैं। कभी भी आप लोग सोचे हैं कि नम्रता और इस परमेश्वर और यीशु मसीह, इसमें साथ क्या मील है, ऐसे कुछ है। Like as Paul also told about, like when we are in God's hand, that Holy Spirit we need to feel so that we can show our deed. God character is not only about kindness. You know every kindness, but today I'm talking about kindness. So I'm talking about if we know the Holy Spirit of in our life, then we can know the what is it about kindness. तो यहाँ पर ये है कि हम लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा का जो फल है एक नहीं है, सिर्फ नम्रता नहीं है, और भी चीज है। जैसे कि मैं आज सिर्फ नम्रता के बारे में बताने वाली हूँ, इसलिए नम्रता के बारे में बोल रही हूँ, पर और भी चीज है जो पवित्र आत्मा ने दिए हैं, और उसके द्वारा हम लोग को ये चीज मिलता है, और उसके द्वारा हम लोग ये चीज कर पाते हैं ऐसे मन में। If like God is living with us, then our life should be practical in kindness. अगर परमेश्वर हम लोग के साथ है तो हम लोग का जो कार्य है बाहर में, जितना सारे हम लोग काम करते हैं, उसका होगा एक उदाहरण होगा कि परमेश्वर हम लोग के साथ है। Like I want to tell about my life, like about kindness. First thing, what I learned lesson from kindness. जैसे कि मैं एक कुछ बताने वाला हूँ मेरे बारे में, जैसे कि क्या जो चीज है मेरे जीवन में जो नम्रता के बारे में कहते हैं। Like mostly, I'm like little angry type person, like short temper, like that. And जैसे कि then one day, अगर मैं अपने को आपको देखते हूँ तो लगता है कि मैं मतलब कि बहुत जल्दी मैं गुस्सा में आ जाते हूँ, मतलब कि बहुत जल्दी में, और इतना जल्दी हो जाता है गुस्सा ऐसे। one day, like one auntie used to always come my house, like she's my friend mother. And then she used to ring and come, and then I used to just get angry, whenever she come like this. I used to feel so like, like she type, I think. जैसे And कि एक then मेरा दोस्त है, उसके जो आंटी है वो आती थी, और वो आने के बाद पानी पीती थी, जब भी आती थी पानी पीती थी, तो मैं पता नहीं किस लिए कि उसको देखने के बाद मैं मुझे बहुत गुस्सा आती थी, और मैं गुस्सा होती थी उसको देखते थे। and then I used to feel, "Hey, I don't want to let." Like one day she came, it was so much raining, and then I told I will not let her in. But as I was praying, I was going to pray because before sleep I used to pray, and then I feel like I should not do. And then I remember, like in when we see story in Matthew, like God will come in.
anywhere, like in poor, as a beggar, as a race, as a sick person. I think about that verse from Matthew. We can get that verse. ओके, जैसे कि मैं वहां पर सोने वाले थे, वो हर टाइम सोने से पहले प्रार्थना करने वाले थे। उस टाइम में बहुत बारिश हो रही थी, तो उस टाइम में वो आई और मैं सोचा कि उसको पानी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सोचा कि अरे बार बार आती है। तो उसके बाद मैं जब एक कहानी याद आया जो बाइबल में कहते हैं कि जो ये परमेश्वर कोई भी आकार में आ सकते हैं, कभी भी गरीब में, या जो है कि बहुत शक्तिशाली, या कहीं भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए मैं सोचा कि जो मुझे करना चाहिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर यही है परमेश्वर। Yeah, and then I let her in, and then I give her food, and then I went to sleep. Before sleep, I opened Bible. Okay, before I went bed, I opened my Bible, and then I find Ephesians verse 4. तो जब मैंने उसको खाना दी और उसके बाद वो खा रही थी, उसके बाद मैं सोने से पहले जब मैं बाइबल खुली तो मैं देखा कि जो एफिसियों जो 4 का 32 है पद है, मुझे वो दिखाई दिया। You can read Ephesians 4 verse 32. कोई पढ़ेंगे जो एफिसियों 4 का 32 का यहाँ पर लिखा है? ओके, यहाँ पर ऐसे लिखता है, एक दूसरे के पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के लिए अपराध क्षमा करो। And then I remember, like, when I read this, I open and then I saw it about kindness. And then तो when I think about kindness, मुझे याद है जब मैंने इस बाइबल को खोली, और ये जो नम्रता के बारे में यहाँ पर भी दिखा है कि कृपा होना है, जैसे कि एक दूसरे के लिए, और उसके लिए जो पाप क्षमा करने के बारे में कहते हैं। and then from that day I learned like how God forgive our sin, how much we are a wicked person, how much we are, but still He was kind to us. तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग कितना जो पापी है, इतना पाप का करते हैं, पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों पर कृपा और उस नम्रता और दया की है बहुत बार। And then that day from where I learned we should be kind to everyone. Sometimes we cannot do whatever kindness God is talking about, but still, if God is living with us, if He is in us, that character need automatically it will come in us. तो ये है कि हम लोग को यही इसी के लिए प्रार्थना करना है, ताकि जो कृपा मेरे मन में नहीं, कि परमेश्वर हम लोग के मन में आए, ताकि जो परमेश्वर का जो फल है वो भी हम लोग को जो बाहर आए। मतलब कि जो कृपा है वो भी अगर परमेश्वर हम लोग के साथ रहेगा तो वो ऑटोमेटिक हम लोग के जीवन में दिखाई देगा, कृपा दया जो नम्रता। Like example, like if kindness if kindness person will do something work, that person will not do for certain time. They will do with their sensitive, their heart, with their full thinking that I will do. They will not make mind like I will do for certain time, but they will put in their mind I will do with all my heart, and then that person will always build of God present. तो ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे भी बहुत लोग मिलते हैं जो लोग छोटा समय के लिए ऐसे कृपा करते हैं एक बार, या कुछ पाने के लिए करते हैं। पर यहाँ पर ये कहते हैं जो कृपा ऐसे ही होना है कि हम लोग को मन से सोचना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका विपरीत जो है कि उल्टा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं उसको करते रहूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है और मुझे सौंपा गया है काम करने के लिए। तो हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं, अपने मन पूरा पूरा मन से सोचना है कि एक काम मुझे करना है, ताकि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर का जो प्रेम हम लोग को लिए किया है ऐसे हम लोग करें। We will do this work because Christ is living inside us. Again, I'm telling, as we are Christian, if Christ is living inside us, this kindness will come out with in our society, in our family, in everywhere with our friends. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग ईसा मसीह में हैं, तो इसलिए कि मैं बार बार ये चीज जो रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जो है कि यीशु मसीह हम लोग के मन में होना चाहिए, यीशु मसीह हम लोग के जीवन में होना चाहिए। अगर यीशु मसीह जीवन में होगा तो उसका जो चरित्र, उसका जो कैरेक्टर है वैसे ही करना है। हम लोग को मतलब कि उसके जैसे वो जैसे करते थे हम लोग को वैसे ही करना चाहिए। मतलब कि उसके द्वारा लोग पता चले कि यीशु मसीह के लोग कैसे होना चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह थे।
Like kindness is not only about doing something good for them, like in like work, like helping, giving their need. That is not only about kindness. जो Kindness, it need नम्रता to और come. जो कृपा, ये यही नहीं है कि सिर्फ किसी को दया करना और किसी को कुछ समस्या हुआ पैसा देना, ऐसा बस ऐसा नहीं है। It need to be like words that whatever we speak, that is also one kind of kindness, what we speak to people. तो ये भी याद रखना है कि हम लोग क्या बातें करते हैं, क्या इसमें दूसरे लोग चोट पहुंचते हैं, तो इसलिए हम लोग बातें से भी दूसरे का जो कि नम्र हो सकते हैं, हम लोग दूसरे को जब बातें करते हैं तो नम्र होकर बातें करें। Like in Proverbs 16 verse 24, this is my favorite verse from Bible. जो नीति वचन 16 का 24 अध्याय जो पद है वो मेरा सबसे अच्छी पद है। यहाँ पर इसके बारे में ऐसे कहते हैं। Like in English, in from my Bible is written, kind words are like honey, sweet to the soul and health for the body. तो यहाँ पर जो हम लोग वो जो बाइबल से पढ़े हैं, हम लोग को हिंदी में ऐसा लिखा है, जो मन भावने वचन मधुर भरे और छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। When whatever else we are Christian, mostly like people think in our country, in our society, like if we are Christian, they think, oh, Christian will be so kind person, they will think. And then they will see our character, how we speak, how we'll encourage them with our words. Like even words also encourage people. It doesn't mean that kindness means I will go help a person, I'll do social work. No. It is about kindness, how we talk with people, how we encourage their life about in God and in their practical life. तो जो होता है कि बहुत लोग जो जानते हैं सच्चे मसीह के बारे में, उन लोग जानते हैं कि जो मसीह के लोग होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, वो बहुत कृपा होते हैं। उन लोग बहुत कुछ काम जो करते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। पर कभी कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि सिर्फ कृपा मतलब है कि सिर्फ आप फिजिकली जाओ और उसके लिए काम करो। बस ये भी याद रखना है कि जो हम लोग को बातें जो बातें हम लोग करते हैं उससे भी किसी का मन जो दुख में है उसको खुशी में ले आ सकते हैं, वो आनंद में हो सकते हैं। तो बातें भी कैसे करना है वो भी हम लोग को सीखना चाहिए। That's why let's think about today. Are we really kind to our family, our friends, and then like our boss or our society? How we are speaking with them, how we are encouraging them, even through our language, how we stay like kindness. Are we really kind to them? इसलिए अभी आज से आप लोग ये चीज सोचिए कि जो चीज आप कर रहे हैं आपके परिवार के साथ, आपके दोस्त के साथ, या आपके जो जहां पर रहते हैं उस गांव या जो शहर में रहते हैं उस जगह में, आप जिससे भी बातें कर रहे हैं उससे आप याद रखिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो परमेश्वर के ओर से है, या परमेश्वर ऐसे चाहेंगे ऐसे करने के लिए कि आप जो भी कुछ बातें करते हैं, आप करने से पहले याद रखिए कि आपको कैसे बातें करना चाहिए। Like kindness is not kindly doing kindness thing is not something that we push over. जो है कि नम्रता और दया वो ऐसा नहीं है कि किसी को जोर जबरदस्ती करना या ओके आप करो, उसके करना ही होगा, ऐसा नहीं है। It doesn't mean that we are doing wrong things like being kind. ये नहीं कि जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोग जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नम्र बनने के लिए, दया बनने के लिए। It doesn't mean you just push up with anything or any like we mostly people think don't be so kind. It's not mostly people think like don't be so kind because like they can take your advantage. Is that is not anything wrong. तो जैसे कि हम लोग जब कुछ अच्छे काम करते हैं या किसी को दया करते हैं, किसी को दुख देख के हम लोग को दुख आते हैं, जो हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना भी दया मत हो क्योंकि वो तुम्हारे जो है कि एडवांटेज देंगे, वो बाद में तुम भी पछताओगे। तो ये चीज याद रखना चाहिए, परमेश्वर के काम अच्छे होते हैं और हर टाइम वो करना चाहिए। And then that work need when we are showing our kindness is not about we need to gain like attention of people, but we need to show our kindness where we can express our God. तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, लोग वहां पर ही कृपा और दया करते हैं जहां पर वो खुद को दिखा सकते हैं, देखो कि मैं दया कर रहा हूँ। पर ये चीज है नहीं कि आप जो कर रहे हैं कि परमेश्वर को वहां पर दिखा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे हैं। तो इसलिए आप कहीं पर भी मौका मिले वहां पर करिए, चाहे छोटा हो या बड़ा।
That's why, like, whatever we do, whatever whatever we are doing, we need to express everything how we are living in God. तो हम लोग जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो याद रखना है कि वो परमेश्वर का महिमा के लिए हो पाए। So we'll see verse Titus 3 verse 4 to 6. हम लोग जो है कि देखेंगे अगले जो है कि तीतुस 3 का 4 से 6। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारे उद्धार किया, और ये धर्म को कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नई जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर उद्धार का से उड़ले। It's like in here is talk like in English and Hindi. It's little different. My that is like, as I told you, as we are Christian, as we are living in Christ, we need to express our kindness and our love. And I will tell this love word and then goodness, gentle word. It's all together. It comes in kindness, because when there will be kind, then automatically love will come. How God did. We need to express it with our Holy Spirit जैसे कि in our life. देखते हैं कभी कभी जो है कि ट्रांसलेशन में थोड़ा कुछ फर्क रहता है और समझने में थोड़ा अलग अलग होता है। यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि जो काइंडनेस का जो टॉपिक है, काइंडनेस कभी भी अकेले नहीं आ सकते, उसके साथ जो है कि अच्छे काम करना, और या कि उसके साथ दया, दयालु, वो सब कुछ जो है कि एक साथ रहते हैं। मतलब कि काइंडनेस अकेले नहीं हो सकता है। जितना सारे पवित्र आत्मा का फल है वो एक के साथ एक जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कि हम लोग जब भी एक काम करते हैं तो दूसरा काम भी आ जाते हैं ऑटोमेटिक। कि हम लोग जब भी कुछ करते हैं परमेश्वर मोहि के लिए, तो एक के साथ एक दूसरा जो अच्छे काम है वो भी जुड़े हुए रहते हैं। Kindness is always a strong point, even in difficult situation of our life. It will help us to solve. But that place, we need to put our God first. We need to express our God first. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो परेशानी में पड़ते हैं, पर हर टाइम ये चीज याद रखना है कि नम्रता एक हथियार हो सकता है आपका उस जगह से दूर होने के लिए। और सबसे पहले परमेश्वर को आगे देना है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम में हो और जो भी कुछ ये में हो, परमेश्वर ही आपको उद्धार कर सकते हैं, पर नम्रता वहां पर एक हथियार बन सकते हैं। Roman 2 verse. Oh, we can see that. I think you can read afterward because we don't have so much time. It's talk about like how God was really, He was so kind to all people around us. यहाँ पर जो Not रोमियो only का दो for का चार है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं आगे भी। तो वहाँ पर कहता है कि जो परमेश्वर कितना अच्छे हैं हम लोग के लिए, कितना मतलब कि अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग के लिए, हम लोग इतना बुरा होने के बाद भी। God, He didn't say like I'm from this high position, I'm from low position, I'm from rich family, I'm from poor family, but He always show His kindness to each and everyone. यहाँ पर जो है परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हम धनी है या गरीब है, या मेरा जो काम है वो बहुत ऊंचा जगह में है या छोटा में है, ऐसे नहीं देखते हैं। परमेश्वर सबको एक ही जगह से देखते हैं, जैसे कि वो कैसे वो मनुष्य हैं, और उसको जो प्रेम और व्यवहार वो सबको सेम करते हैं। Like how much we are kindness, we never do like think that I'll get reward, but always think that reward God will give me afterward. Always keep that things in our mind and be kind to each and everyone. अगर आप सच में कृपा और दया होते हैं तो आप इसके लिए वेट नहीं करते हैं, चलो आज मैं उसको दया किया कि कल मुझे उसका उपहार मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप अगर सच में ऐसे काम करते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि जो आपका ऊपर है, जितना सारे चीज है, वो स्वर्ग में आपके लिए वेट कर रहा होगा। तो आप उसी के लिए आप काम करते जाइए। We can see from Jesus' life only how he didn't have anything to give people like when they are in need, but he always for we can take so many examples how God was kindness to us, like He forgive our sin, He sacrificed his life for us. जैसे कि हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह यहाँ पर बहुत कुछ धन दौलत लेके नहीं आए थे कि आपको दे पाए और आपको अमीर बना पाए। और वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह अपना जीवन देके जो हम लोग पाप किए उस पाप से उद्धार देने के लिए एक रास्ता बना दिया है। इससे बड़ा काम और कोई नहीं कर सकते।
He always expresses his kindness whenever we need protection, whenever we are in danger, whenever we are sick. जैसे कि देखते हैं कि हम लोग अगर अपने जीवन में अगर खुद को देखते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं, जब हम लोग बहुत जैसे कि बीमार में है या बहुत मुसीबत में है, तो वही है एक रास्ता जो हम सबको हर टाइम उद्धार करता है और हर टाइम उस प्रॉब्लम से बचाता है। He provided us free salvation because he was that much kindness. He is that much kindness to us. परमेश्वर इतना महान है, इतना दयालु, और उसका कृपा इतना महान है कि वो हम लोग को जो फ्री में दिया है कि बचने का रास्ता, जैसे कि देखते हैं कि कैसे हम लोग उद्धार पा सकते हैं, उस उद्धार पाने का रास्ता वो फ्री में दिया है हम लोगों को। If our Father is like that and we are His children, why we cannot be like that? That is my question for myself and to everyone. अगर हम लोग के पिता ऐसे हैं तो हम लोग उसके बच्चे हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही होना चाहिए कि ऐसे हम लोग नहीं कर सकते? Now the question will be there. Of course, she will be kindness because she was God. No, He came in this world as how we are, but in human form, He was that much kindness. हाँ, आप लोग कह सकते हो कि चलो वो तो परमेश्वर है, वो कर सकते हैं, पर हम लोग ये चीज भूल गए हैं, वो जो पृथ्वी में आए थे एक मनुष्य के रूप में आए थे, तो इसलिए वो जो भी चीज हम लोग के ऊपर नम्रता और कृपा और दया किया वो अपने मनुष्य के रूप में ही किया है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर के रूप में किया। That's why, as we are His children, we should be like Him also. I know it will be so difficult to be kindness, mostly in this situation, this time. But if we really give our heart to God, if we really walk in His way, surely that character, this kindness will be with us. अब अपने सच्चे मन से सोचिए, जैसे कि हम लोग को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो है कि परमेश्वर ने ऐसा काम किया, मतलब कि ऐसे कोई नहीं कर सकते, और हम लोग को जैसे कि उसका बेटा है, उसका बेटी है, तो हर टाइम ऐसे काम करते ही चाहिए, क्योंकि आगे जो परमेश्वर ने रास्ता दिखाएगा और जो होगा वो सब कुछ उसके द्वारा ही हो सकता है। Okay, if we are kind, how we need to keep our kindness? Let's open Proverbs chapter 3, verse 3. अगर हम लोग इतना ही नम्र और कृपा होंगे तो उसमें क्या हो सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो नीति वचन 3 का 3 यहाँ पर कहते हैं, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। What is written? Like example I want to give. When we eat so much food, like when we feel like till here it will, if our food is overeat, we feel like till neck it's coming food and then after we'll do vomit now. Like that kindness should be also there. यहाँ पर ये चीज है, जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं बहुत ज्यादा खाते हैं, बोलते हैं कि पूरा गले तक आ गया, तो उसके बाद हम लोग ज्यादा खाते तो वॉमिट, मतलब वॉमिट करते हैं, तो ऐसे ही है यहाँ पर कहते हैं कि जो तुम्हारा जो नम्र और कृपा और दयालु जो मन है, ऐसे इतना तक आना चाहिए, मतलब कि वो हर टाइम लगे कि मतलब पूरा भरपूर है। That's why our kindness, it's not should be like offer, but we need to return in our heart. We need to keep that thing in our heart. तो ये भी एक चीज सोचने का बात है, मतलब कि जो अपना कृपा और दया जो मन है वो मन में होना चाहिए, अपने जो हृदय में होना चाहिए, ये चीज आपके हृदय में हर टाइम होना चाहिए, आप जो भी कुछ काम करें। It's not, I already told you, it's not about soft. Whatever we do kind of work. Like now is mostly like situation is like corona is going on and then people are helping and putting social media and doing this and that. Of course we need to do. But if we really do from our heart that kind word, that word need to first give reward to God, not in social media. ये चीज याद रखना, जैसे कि मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि शायद ये कभी कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, कोरोना आए हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और देखते हैं कि ऐसे कभी कभी हम लोग कर भी नहीं सकते, पर ये चीज है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ना कि आप बस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप फोटो खींचे और सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। We can see in Zechariah verse, chapter 7, verse 9. हम लोग जो जकरिया का 7 का 9 में देख सकते हैं, यहाँ पर कहता है खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना।
Yeah, it like it talk about do. Do means practice. If we have kindness, we need to practice also in our life. But how God did His kindness to world, we need to practice like that. Not about like I I told you so many times. We need to be practice in God way so that we can express our God love so that like non-believer or everyone can also see. Oh, she's children of God. That's why her character is showing how like mostly I told them like as we are Christian, mostly they think like Christian people are like so kind, this and that. That should be we need to show in our practical life. जैसे कि हम लोग देखते हैं जब बाइबल में कहते हैं डू मतलब कि करो करो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने बातों में कर रहे हो करो मतलब ये होता है कि आप खुद ही जा रहे हो उसके आपको मतलब कि जो काम करते हो उसके बारे में कहते हैं मतलब कि जब हम लोग काम करते हैं जब काम करने का जब जैसे कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी है तो इसलिए हम लोग परमेश्वर जैसे ही काम करना है ना कि सिर्फ दूसरे के लिए दिखाने के लिए या ना कि सिर्फ कुछ छोटा समय के लिए ऐसा ना हो हम लोग जब भी कुछ इस जो नम्रता में आते हैं तो हम लोग कोशिश करें कि उसको और भी बहुत टाइम तक धरे रखने के लिए और भी उसको मतलब कि वो चले ऐसे ही मतलब बस सिर्फ आज किया और कल से खत्म ऐसे ना हो You can see First Peter verse chapter 3 verse 3 like you can write and read afterward like it's talk about do you ever feel kindness of God in our life? That is question is there. Do we really feel kindness of God in our life? यहाँ पर जो है This कि question I want पहले जो to पत्रस 2 का 3 में यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि क्योंकि तुमने प्रभु का कृपा का साथ चख लिया है जैसे कि हम लोग जो प्रभु जो है कि परमेश्वर उसका जो प्रेम उसका जो साथ मतलब कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो जो जीभ में जो साथ लगते हैं तो ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम प्रभु का साथ चाख चुके हो मतलब कि तुम्हारी अंदर भी ऐसे ही चीज है इसलिए तुम उसको समझ सकते हो अगर तुम्हारे अंदर ऐसी चीज नहीं है तो तुम नहीं समझ सकते so it's as we are Christian it's really important to know God's kindness toward us. तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जैसे कि ऐसे ही है जब हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी है तो जो नम्रता जो कृपा दया ऐसे ही हम लोग को मन में होना चाहिए जैसे परमेश्वर ने हम सबको किया है Like kindness will change in our family, our society, as I told you. Kindness is gift from God. जो है कि नम्रता और कृपा एक हथियार है जो आपके परिवार आपके जगह आप जहाँ रहते हो आपके जो दोस्त लोग हैं सबको एक परिवर्तन कर सकते हैं सबको मतलब कि अलग दुनिया बना सकते हैं जो कि अच्छे के दुनिया हम लोग देख सकते हैं वो हो सकते हैं Like like some of us here maybe like we are alone Christian in family. We may think like it's so hard to be Christian and stay, but be kind to our family so that we can change them. Because of our kindness, they can also change. यहाँ पर देखते हैं कि बहुत लोग कहते होंगे कि जो है कि इतना नम्र होना इतना इजी नहीं है क्योंकि हम लोग जिस जगत में और जिस जगह में जी रहे हैं वो बहुत दिक्कत होता है बहुत इजी नहीं है मतलब कि बहुत प्रॉब्लम होगा हम लोग आगे पे पर ये चीज जो है इसके द्वारा जो परिवार में जहाँ रहते हैं उसके द्वारा धीरे धीरे लोग भी जानेंगे कि मतलब कि हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे उसके द्वारा बाहर के भी जो लोग नहीं जानते हैं इस मसीह के बारे में उन लोग भी जान पाएंगे नम्रता के द्वारा That's why, like we see, like First Corinthians chapter 3 verse 4 is talk about like you can write and read after this word is love is kind. मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रही पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले करंथिया 13 का 4 में यहाँ पर कहते हैं जो प्रेम जो है धीरजबंद है और कृपालु है Yeah, that's why like kindness is very important. First, we need to when we express what who is God. For me, I'll express like God is kindness. It will come अगर कोई automatic मुझे in mind. पूछे कि परमेश्वर क्या है मतलब तो मैं बोलूंगा कि परमेश्वर कृपालु है परमेश्वर एक नम्र एक आदमी इंसान है क्योंकि जो हम लोग को बचाता है Like some of the point we can I took according to me, everyone have different point, but how we can be kindness to towards people. हो सकता है कि सबके अलग अलग सोच है जैसे कि कृपा कैसे हम लोग को उसको आगे बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने जीवन में कृपा को कैसे बढ़ा सकते हैं We should be friend to each and everyone, even believer or non-believer.
जो है कि हम लोग एक दूसरे के साथ दोस्त जैसे बना रहना है, चाहे वो जो है कि हम लोग जो जिसमें विश्वास कर रहे हैं वो हो सकता है, या जो विश्वास नहीं करते जिस उसी में वो भी हो सकता है, पर एक दूसरे से हम लोग दोस्त जैसे बने रहना Thinking about each other feelings. है। जो है कि एक दूसरे के बारे में सोचते होंगे, मतलब कि एक दूसरे का अच्छे और बुराई में साथ देते होंगे। Say nice, say nice things to each other, like to our family, our friend, our relatives, our society people. हो सकता है कि शायद वो काम अच्छे हो या बुरा जो भी कर रहे हो उसको और भी इनकरेज करने वाला, चाहे तो अपने परिवार में हो, दोस्त में हो, जो हो, जितने सारे उसके साथ मिलते जुलते हैं, तो उनको सब हर टाइम इनकरेजमेंट करे कि जो काम कर रहे हो वो भी आगे बढ़े। Respect each other. एक दूसरे का मतलब कि रिस्पेक्ट करना है, उनका सम्मान करना है। Take care each other, love each other. एक दूसरे का जो है कि वो कैसे हैं उसको देखभाल करना है, एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। We need to forgive each other. और सबसे जो है कि एक दूसरे का जो पाप है वो क्षमा करना चाहिए। And then we need to behave everyone equally. Like as I told you, God never see who are poor, rich, position. Like that, we need to also behave each and everyone equally. ये चीज हर टाइम याद रखना है, चाहे आप छोटा या बड़ा हो, जैसे कि परमेश्वर किसी को अलग से नहीं देखते हैं, सबको एक ही आंखों से देखते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि एक दूसरे को जैसे कि एक ही जैसे समझने के लिए कि उसको ज्यादा करना है, इसको कम करना है, ऐसा ना हो। That's why let's be kind to each other. If we are like so much angry person, this and that, let's pray for ourselves. Mostly I will do, Lord help me to be kind, because some of time, like as I told you, I'm short tempered person. That's why we need to pray for ourselves so that we can be kind to people as how God did. जैसे कि मैं अपने जीवन में तरह बता चुका हूँ कि जैसे कि मैं जो है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ, तो आप लोग भी प्रार्थना करिए कि आप लोग भी ऐसे निम्र और नम्र और धीरज में और कृपा हो पाए, ताकि आपके जो जो शारीरिक है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आ पाए। That's why, like, last one definition I want to talk about kindness. Kindness is the language. जो मैं है कि लास्ट में एक उसका बताना चाहता हूँ कि जो दयालु क्या है, जो जो है कि दयालु और जो है कि नम्रता वो है एक भाषा है। With that deaf can hear and blind people can see. जिन लोग है कि जो सुन नहीं पाते हैं वो सुन सुन पाएंगे, जो देख नहीं पाते हैं वो देख भी पाएंगे। It means kindness is the feelings where even who are deaf, who are blind people, they can feel what we did for them. Deed means like तो जो यहाँ पर देख I'm सकते not. हैं कि जो दयालु के बारे में कहते हैं, यहाँ पर दयालु ऐसे चीज है जैसे जो है कि हम लोग एक महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि जो अंधे हैं वो देख सकते हैं, जो सुन नहीं पाते वो भी सुन पाते हैं। तो एक महसूस करने का एक चीज है और महसूस करने का एक समझना है, जैसे कि हम लोग कह के समझा नहीं पाएंगे आपको। This kindness we need to show each and everyone so they can change, and then they can see us different from other, like we are the children of God. तो हम लोग यही कोशिश करना है कि एक दूसरे के साथ काइंड मतलब कि जो नम्र में रहना है, ताकि इसके द्वारा जो लोग यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन लोग भी जान पाए कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो कितना दया होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही दया है और कृपा है। Okay, that's why let's think about my question, like are we really kind to each and everyone? बस यही चीज मैं आज खत्म करने से पहले बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे के लिए दया और कृपा हो पाए, Like how God was kind to each and everyone. जैसे कि हमारे परमेश्वर एक दूसरे के लिए जैसे कि कृपा है, दया है, हम लोग ऐसे ही हो। I want to thank you so much for everyone. God bless you all. सबको धन्यवाद देना चाहते हैं और परमेश्वर सबको आशीष दीजिए। थैंक यू सो मच क्लियर, बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग वाला एक जो मैसेज था, हम बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हुए हैं इस मैसेज से। और सच में आपने एक बात कहा था कि जब जब हम काइंडनेस के बारे में बात करते हैं तो हमें जीसस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।
कि यीशु मसीह हमारे लिए कितना कुछ खोया है और कितना कितना कुछ सहा हमारे लिए। सो आई होप कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ सक रहे होंगे। एंड दिस इज द रियली ब्यूटीफुल लैंग्वेज a deaf can hear and a blind can see. So I hope you really enjoy this message. And also हम सभी चाहते हैं कि दूसरे के साथ परमेश्वर का वचन साझा करना, बट हम ये देखने लगते हैं, योग्यता हमारे जीवन में आ जाती है कि हम योग्यता के तौर पे हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं कि उस योग्य है या नहीं है। अगर उस योग्य नहीं होता है तो हम उसको हम नहीं हेल्प करते हैं। बट मैंने लास्ट बार एक बार मैंने एक टेस्टमनी बताया था कि एक पास्टर थी जो ऑनलाइन वो भी प्रचार करती थी, और एक बार एक शॉप में गई और एक औरत जो बहुत धनी थी, और वो जो कि एक ज्वेलरी खरीदने की दुकान पे खड़ी थी और चाहती थी ज्वेलरी खरीदना, बट कुछ पैसे उसको कम पड़ रहा था और वो ज्वेलरी उसको बहुत पसंद थी, और उस ज्वेलरी को खरीदे बिना वो वापस नहीं जाना चाहती थी। और और इस वजह से वो बहुत ही बेचैन थी। अपने फ्रेंड से जो उसके साथ आई थी उसको भी बोली, पर उसके पास भी पैसा नहीं थी। पर जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रही थी, जो परमेश्वर के बारे में साझा करती थी ऑनलाइन, उन्होंने देखा कि इनको ये बहुत ही पसंद लग रहा है। वैसे भी हम जानते हैं कि बहुत सारे क्रिश्चियन ज्वेलरी नहीं पसंद करते हैं, बट उन्होंने जाके उसके पास पूछा कि क्या आपको ये पसंद है? बोला हाँ, मैं आपको नहीं जानती। ओके, कोई बात नहीं है, मेरा नाम ये है, मैं और आप ये चाहते हैं इसको खरीदना, और मैं जान गई आपको, और इसका कितना प्राइस है? उसने बोला इतना। आपके पास कितना है? उसने बोला मेरे पास इतने पैसे हैं। तो उसने बोला ठीक है, बाकी के पैसे मैं देती हूँ। पर वो बोली मैं नहीं जानती हूँ। पर उसने ऑनलाइन जो मिनिस्ट्री करती थी, उन्होंने बोला मैं जानती हूँ आपको, कोई बात नहीं, और उसको पैसे दिए और वो खरीद ली। और उसी दिन से वो ऑनलाइन मिनिस्ट्री जो यूट्यूब पे आता था, उस ऑनलाइन मिनिस्ट्री को अटेंड करने लगी। और कुछ दिन के बाद पता चला कि उनके परिवार के साथ बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए। So this is the kindness. This is the kindness. But we people really most of time we think about the partiality कि कौन उस योग्य है, एबिलिटी के बारे में देखते हैं। बट बाइबल कहता है कि जब while we are sinner, Jesus loved us. He died for us for our sin. So really this is a very blessing sermon which we have here through clear. So I hope you will be kind with others. आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दूसरे के साथ काइंड होंगे, दया के साथ उनके साथ पेश आएंगे। वो डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता वो अमीर है या गरीब है, पर उसको ज़रूरत है तो हमें उसके साथ काइंडनेस के साथ पेश आना चाहिए। आई होप परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष देंगे। सो इसको हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे, और हम नेक्स्ट बार फिर से हम आएंगे। और यदि आप लोग का कोई किसी तरह का सवाल होगा तो हम प्रार्थना करने के बाद हम बातचीत करेंगे, और आप लोग कह सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इस अंतिम प्रार्थना को हमारे एक फ्रेंड हैं जो एंजला ओके, आई होप कि वो इसको प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। Yes, okay. Okay, let's pray. Gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this evening. Thank you so much, Lord, for the blessings that you have blessed us throughout the day. And thank you so much for each and everything what you have done to our friends out there and to our family as well. Lord, in this time as we have heard the message from your servant, Lord, thank you so much, Lord, for giving your words upon her, so that the words, whatever she spoke, we know that it comes from your throne. And Lord, we were blessed by that. Thank you so much, Lord. And as we were trying to share your words to our friends who don't know you yet, and those who know you also, Lord,
continue to be with us, and especially with our friends for the ministry, Lord, as they wanted to spread your word more and more to other people. Please, Lord, be with them and guide them, send them your, give them your holy wisdom, your understanding, so that they will be able to share it more and more to many people. And Lord, in this time, as we're going to close our worship service, may you bless each and every one of us. May you continue to guide us in the way that we should go, so that we will not depart from you. And Lord, for the next service also, may you be with us, and may you be with the speaker who's going to speak, and be with our friends who are present in this meeting, and for those who cannot present also, Lord, be with them. We don't know, maybe for some reasons they cannot join. So Lord, continue to be with them as well, and if it is your will for them to join the next service, may you help them how to do it, Lord. And Lord, if anyone is sick, if anyone is suffering among us, may you heal us, and may you touch us with your healing hand, so that we'll be able to get healed and praise your name more and more again. And God, as we're going to sleep tonight, may you protect us from all evil and harm and dangers. And if it is your will for us to see the next day, let it be according to thy will. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Lord, for everything what you have done in us, and continue to guide us and continue to be with us. For all these things I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Thank you.